بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 18 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں خلفائے راشدین، مصنف شاہ معین الدین احمد ندوی، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر سے، یا پھر 03455234518 پہ محمد شفیق سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 18۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو غالب انصاف سے کام لے کر جس قدر وظیفہ بیت المال کے ذمہ باقی تھا، جس کی مقدار تخمیناً 20-25 ہزار تھی، ان کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ نمبر 4، چوتھا اعتراض بالکل بے معنی ہے۔ فوجی گھوڑوں زکوٰۃ کے اونٹوں کے لیے چراگاہیں بنوانا خلیفہ وقت کا منصبی فرض ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بقیع کو چراگاہ قرار دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ملک میں وسیع چراگاہیں تیار کرائی تھی۔ عہد عثمانی میں قدرتاً گھوڑوں اور اونٹوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ صرف ایک چراگاہ میں 40,000 اونٹ پرورش پاتے تھے۔ اس لیے سرکاری چراگاہوں کا وسیع پیمانہ پر انتظام کرنا ضروری تھا، اور چونکہ یہ تمام چراگاہیں سرکاری خرچ سے تیار ہوئی تھی، اس لیے عوام کو اس سے مستفید ہونے کا کوئی حق نہ تھا۔ البتہ اگر نظام کی یہ صورت ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی گھوڑے اور اونٹوں کے لیے مقام بقیع کی چراگاہ کو مخصوص کر لیا تھا، تو اس کے متعلق انہوں نے خود جن الفاظ میں اپنی بریت ظاہر کی ہے وہ اس بحث کے لیے کافی ہے۔ ترجمہ: لوگ کہتے ہیں کہ تو نے مخصوص چراگاہیں بنائی ہیں، حالانکہ خدا کی قسم میں نے اسی کو مخصوص چراگاہ قرار دیا ہے جو مجھ سے پہلے مخصوص ہو چکی تھی، اور خدا کی قسم ان لوگوں سے وہی مخصوص چراگاہیں تیار کرائیں جن پر تمام اہل مدینہ غالب آئے۔ اس کے بعد چرانے سے کسی کو نہیں روکا اور اس کو مسلمانوں کے صدقے پر محدود کر دیا، اس لیے ان کو چراگاہ بنایا تاکہ والی صدقہ اور کسی کے درمیان نزاع نہ واقع ہو۔ پھر کسی کو نہ منع کیا تو اس کو ہٹایا، بجز اس کے جس نے بطور رشوت کے کوئی درہم دیا۔ میرے پاس اس وقت 2 اونٹوں کے سوا اور کوئی مویشی نہیں ہے، حالانکہ جس وقت میں نے خلافت کا بار گراں اپنے سنگ لیا ہے تو میں عرب میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا، اور آج ایک اونٹ اور ایک بکری تک نہیں ہے، صرف حج کے لیے 2 اونٹ رہ گئے ہیں۔ نمبر 5، بازار میں بعض اشیاء کی خرید و فروخت کو اپنے لیے مخصوص کر لینے کا قصہ بالکل غلط ہے۔ اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جفاکار بادشاہ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ البتہ کھجور کی گٹھلیوں کو زکوٰۃ کے اونٹوں کی خوراک کے لیے خریدنے کا انتظام کیا گیا ہوگا، لیکن اس سے کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6، اپنے حاشیہ نشینوں اور اہل قرابت کو اطراف ملک میں وسیع قطعات زمین مرحمت کرنے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے، اس کی صحیح کیفیت یہ ہے۔ عہد عثمانی میں بہت سے اہل یمن گھر اور جائیداد چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو راحت اور سہولت کے خیال سے نزول کی اراضی کا ان کی یمن کی جائیداد سے تبادلہ کر لیا تھا۔ مثلا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قطع زمین دیا تو اس کے معاوضے میں کنڈہ میں اس کی ملوکہ جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ انتظامی حیثیت سے اس قسم کا رد و بدل ناگزیر تھا۔ عراق میں بہت سی زمین غیر آباد پڑی ہوئی تھی، جن لوگوں نے اس کو قابل زراعت بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے منعدی اردانیت فحلح پر عمل کر کے ان کو اس کا مالک قرار دیا، اور ملک کو آباد و قوم کو مرفوع حال کرنے کے لیے اس قسم کی ترغیب و تحریض نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔
नंबर 7, अगर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इखलाकी या सियासी मसाले की बिना पर किसी सहाबी की तादीब की तो उससे इसकी तजलील नहीं हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कौड़ा उठाया, अयाज बिन गनम का कुर्ता उतरवा कर बकरियां चराने को दी और साद बिन वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु को जुर्रे मारे तो किसी ने उसको तजलील पर महमूल नहीं किया। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिला वतन नहीं किया था, बल्कि वो खुद तारिक दुनिया हो गए थे। चुनांचे जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तहकीकात के लिए उनको तलब किया और वो दरबार खिलाफत में हाजिर हुए तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले फरमाया कि आप मेरे पास रहिए, आपके अखराजात का मैं कफील हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुम्हारी दुनिया की मुझको जरूरत नहीं। इसी तरह यादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी कोई वाक़या पेश नहीं आया था, बल्कि उनको भी जिला वतनी की रिवायत के बरखिलाफ एक मुस्तनद रिवायत मौजूद है कि वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आखिरी अहद तक शाम में तक़सीम गनीमत के ओहदे पर मामूर थे। अलबत्ता अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जंदब बिन जनादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कुछ सख्तियां हुई, लेकिन उसकी इनसे तजलील नहीं हुई। एक मुसहफ के सिवा तमाम मसाहिब के जिला देने का इल्जाम सिर्फ उन लोगों के नजदीक काबिल वक़्त करार पा सकता है जिनके दिल बसीरत से और आंखें बसारत से महरूम है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद कोई सहीफा तरतीब देकर पेश नहीं किया, बल्कि फितने के ज़हूर से पहले आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ही हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मसहफ तैयार कराया था उसकी नकलें हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुख्तलिफ अमसार रियाद में भिजवा दी और उसी की तस्लीम पर तमाम उम्मत को मुत्तफिक कर दिया। ये आपका वो कारनामा है जिसके बार एहसान से उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सुबुक दोष नहीं हो सकती। नंबर 9, इसमें शक नहीं कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निहायत रहमदिल और रक़ीक़ुल क़ल्ब थे, लेकिन शरई हुदूद की अजरा में उन्होंने कभी तसाहुल से काम नहीं लिया। जिन वाक़यात की बिना पर उनको अजरा हुदूद में तगाफुल शिआर बताया जाता है उनकी तफसील ये है। नंबर 1, उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हर मर्ज उनका क़सास नहीं लिया गया। नंबर 2, वलीद बिन अक़बा पर शराब खोरी की हद जारी करने में गैर मामूली ताख़ीर हुई। हर निज़ाम का वाक़या ये है कि जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू लूलू मजूसी ने शहीद किया तो उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गज़बनाक होकर कातिल की लड़की और हरमजान को, जो एक नौ मुस्लिम ईरानी था, कत्ल कर दिया, क्योंकि उनके ख्याल में ये सब साजिश में शरीक थे। चुनांचे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उन्होंने खिलाफत हाथ में ली तो सबसे पहले यही मुकदमा पेश हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसके मुतालिक राय तलब की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उबैदुल्लाह उमरान को हरमजान के क़िसास में कत्ल कर देने का मशवरा दिया। बाज़ मुहाजिरीन ने कहा, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कल कत्ल हुए और उनका लड़का आज मारा जाएगा। उमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर आप उबैदुल्लाह को माफ कर देंगे तो उम्मीद है कि खुदा आपसे बाज़ ना करेगा। गैर अक्सर साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल कर देने के खिलाफ थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, चूंकि हरमजान का कोई वारिस नहीं है, इसलिए बहैसियत अमीरुल मोमिनीन मैं इसका वली हूँ और कत्ल के बजाय दीद पर राजी हूँ। इसके बाद खुद अपने जाती माल से दीद की रकम दे दी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस उम्दगी के साथ इस मुकदमे का फैसला किया है इससे बेहतर नहीं हो सकता था, क्योंकि कबीला अदा कभी हर मजान के क़सास में उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखता और दर हकीकत इसी वक्त फितना फसाद की आग मुश्तइल हो जाती। वलीद बिन अक़बा वाली कूफा ने दादा नोशी की तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन माजूल कर दिया।
लेकिन हद के अजरा में इस वजह से ताखीर हुई कि गवाहों पर कामिल इत्मीनान नहीं था। जब काफी सबूत बाहम पहुंच गया तो फिर हद के अजरा में पसपेश नहीं किया गया। नंबर 10, ये ख्याल कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मौसूक रिवायात को छोड़कर रिवायात शाज़ा पर अमल किया कतई गलत है। अलबत्ता इज्तिहादी मसाइल में इख्तिलाफ आरा हुआ और ये हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में इस किस्म का इख्तिलाफ पाया जाता है। नंबर 11, मजहब में इख्तिराए बिदात का इल्जाम निहायत लघु और सरासर कज़्ब है। इत्बाए सुन्नत हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकसद हयात था। मिना में 2 के बजाय 4 रकअत नमाज अदा करना भी दरअसल एक नस्स शरई पर मबनी था। चुनांचे जब सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको बिदअत पर महमूल करके इस पर नापसंदीदी का इजहार किया तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मजमुए में 4 रकअत नमाज पढ़ने की हस्ब ज़ेल वजह बयान की। तर्जुमा। साहिबों, जब मैं मक्का में पहुंचा तो यहाँ इकामत की नियत कर ली और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जो किसी शहर में इकामत की नियत कर ले उसको मुकीम की तरह नमाज पढ़नी चाहिए। नंबर 12वां इल्जाम मिस्री वक़्त के साथ बदअहदी का है। इस पर तफसीली बहस हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मौके पर आएगी। गर्ज ये हकीकत है इन तमाम इल्जामात की जिनकी बुनियाद पर साजिश, फितना, पर्दाजी और इनकलाब की इमारत कायम की गई थी और इस हद तक मुकम्मल हो चुकी थी कि इसका इन्हिदाम तकरीबन नामुमकिन हो गया था। ताहम हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शोरश रफा करने के लिए इस्लाह और शिकायतों के अजाले की एक आखिरी कोशिश की और तमाम अमाल को दारुल खिलाफा में तलब करके उसके मुतालिक एक मजलिस शूरा मुनक्किद की जिसमें अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्लाह बिन अबी सरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सईद बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खास तौर पर काबिल जिक्र है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मुख्तसर तकरीर के बाद मौजूदा शोरश को रफा करने के मुतालिक हर एक से राय तलब की। अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरा ख्याल है कि इस वक्त किसी मुल्क पर फौज कशी कर दी जाए, लोग जिहाद में मशगूल हो जाएंगे तो फितना फसाद की आग खुद ब खुद सर्द हो जाएगी। सईद बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मौजूदा शोरश सिर्फ एक जमात की वजह से है, इसके सरकर्दा अगर कत्ल कर दिए जाए तो मुफस्सिदीन का शिराजा बिखर जाएगा और मुल्क में कामिल अमन व अमान पैदा हो जाएगा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हर एक आमिल अपने सूबे में अमन व अमान कायम रखने का जिम्मा ले, मैं मुल्क के शाम का जामिन हूँ। अब्दुल्लाह बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि शोरश पसंद ग्रोह हरीस व तमा है, इसलिए मालो जैसे उसका मुंह बंद किया जा सकता है। उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपकी बेइतदालियों ने लोगों को एहतजाज हक पर आमादा किया है। इसके तदारुक की सिर्फ 2 ही सूरतें हैं, या अदल इंसाफ से काम लीजिए या खिलाफत से किनारा कशी इख्तियार कीजिए। अगर ये दोनों नापसंद हों तो फिर जो चाहे कीजिए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ताज्जुब से उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, अफसोस, क्या तुम मेरी निस्बत ऐसी राय रखते हो? उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश रहे, लेकिन जब मजमुआ मुंतशिर हो गया और तन्हा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रह गए तो कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे बहुत ज्यादा महबूब हैं। मजमुआ आम में मैंने जो राय दी वो सिर्फ नुमाइशी थी ताकि मुफस्सिदीन मुझे हम ख्याल समझकर अपना राजदार बनाएं और इस तरह आपको उनके खैर व शर से मुत्तला करता रहूं। अगरचे ये उज़ूर माकूल और दिलनशीन ना था, ताहम हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गए। मजलिस शूरा के अरकान ने अगरचे अपने अपने ख्याल के मुताबिक मुफीद आराएं दी, लेकिन उनमें से किसी राय से भी असल मर्ज का अजाला नहीं हो सकता था। इसलिए मुल्क का कोई
मुकम्मल दस्तूर अमल तैयार ना हो सका और हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम अमाल को वापस कर दिया और खुद एक मुकम्मल स्कीम सोचने में मसरूफ हो गए। मुफस्सिदीन कूफा की रज़ाजोई। पहले गुजर चुका है कि मुफस्सिदीन कूफा सईद बिन अलास रदी अल्लाह तआला अन्हु से खास बुग़्ज़ व नाद रखते थे। चुनांचे जब वो मजलिस शूरा में शरीक हो गए तो उन्होंने बाहम अहद किया कि अब वो इनके कूफा आने में बज़वर मज़ाहम होंगे। चुनांचे हज़रत सईद बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से कूफा गए तो मुफस्सिरीन ने शहर से बाहर निकलकर मकाम जरा में मुज़ाहमत की और सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना जाने पर मजबूर कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माजूर करके अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तकर्रुर किया और बागियों के पास लिख भेजा कि मैंने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तकर्रुर कर दिया और आखिर वक्त तक तुम्हारी इस्लाम में जद्दोजहद करूंगा और किसी वक्त सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ूंगा। तहकीकाती वफूद। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बराबर इस्लाह मुल्क की फिक्र में थे कि कोई मुनासिब तदबीर समझ में नहीं आती थी। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया था कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हालात की तहकीक के लिए वफूद रवाना किए जाएं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये राय पसंद आई। चुनांचे सन 35 हिजरी में हजरत मोहम्मद बिन मुसलिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा, उसामा बिन ज़ैद बसरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बसरा, अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिस्र, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम और बाज़ दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीगर सूबाजात की तरफ तफ्तीश हाल के लिए रवाना किए। नेज़ तमाम मुल्क में गश्ती ऐलान जारी कर दिया कि मैं अमूमन हज के मौके में तमाम अमाल को जमा करता हूँ और जिस आमिल के खिलाफ कोई शिकायत पेश की जाती है फौरन तहकीकात के लिए तदारुक करता हूँ। लेकिन बावजूद इसके मालूम हुआ है कि बाज़ अमाल ने बेवजह लोगों को मारते हैं, गाली देते हैं और दूसरे तरीके से जुल्म तादी करते हैं। इसलिए ये ऐलान आम है कि जिसको मुझसे या मेरे किसी आमिल से कोई शिकायत हो वो हज के मौके पर बयान करे। मैं कामिल तदारुक करके जालिम से मजलूम का हक दिलाऊंगा। इनकलाब की कोशिश। इधर दरबार खिलाफत में इस्लाहत की तजवीज़ें पेश हो रही थी, दूसरी तरफ मुल्क में एक अज़ीमुशान इनकलाब की साजिश मुकम्मल हो चुकी थी। चुनांचे बसरा, कूफा और मिस्र के फितना परदाजों ने आपस में तय करके अपने अपने शहरों से हाजियों को वज़ा में मदीने का रुख किया। हाजियों की वज़ा में मदीने का रुख किया ताकि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बज़वर अपने मुतालबात तस्लीम कराएं। मदीना के करीब पहुंचकर शहर से 2-3 मील के फासले पर कयाम किया और चंद आदमी जो इस जमात के सरकर्दा थे बारी बारी हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत साद वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए कि वो अपनी वसातत से मामले का तस्फिया करा दें, लेकिन सब ने इस झगड़े में पड़ने से इनकार कर दिया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फितना फसाद का दबाना और लोगों की सही शिकायत का रफा करना बहरहाल मंजूर था, इसलिए उन्होंने मुफस्सिरीन के इज्तिमा की खबर सुनी तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर कहा कि आप इस जमात को राजी कर वापस कर दीजिए, मैं जायज मुतालबात के तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वसातत से मुफस्सिरीन वापस गए। उसके बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुम्मे के रोज मस्जिद में खुतबा दिया और तफसील के साथ इस्लाही स्कीम और जदीद इस्लाहात के अजरा से एक तरफ तो बनु उमय्या का जोर टूट जाएगा, दूसरी तरफ और तफसील के साथ इस्लाही स्कीम और अपने आइंदा लाहे अमल की तौज़ीह की। लोग खुश हुए कि अब मुनाज़ात का खात्मा हो गया और जदीद इस्लाहात के अजरा से एक तरफ तो बनु उमय्या का जोर टूट जाएगा तो दूसरी तरफ बाग़ इस्लाम में जिसको मुसलसल 5 साल के फितना फसाद और साजिश फितना परदाजी की बाद खिजा ने बेरोनक कर दिया था, फिर ताज़ा बहार आ जाएगी। लेकिन ये गुंचा सरवर अभी अच्छी तरह खिला भी ना था कि मुरझा गया और एक दिन दफतन मदीना की गलियों में तकबीर के नारों घोड़ों की टापों से शोर क़यामत बर्पा हो गया।
कबार साहबा रदी अल्लाह तआला अन्हु घबरा कर घरों से निकल आए, देखा कि मुफस्सिदीन की जमात फिर वापस आ गई है और इंतकाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बढ़कर वापस आने का सबब दरियाफ्त किया। मिस्रियों ने कहा कि राह में दरबार खिलाफत का कासिद मिला कि जो निहायत तेजी और उजलत के साथ मिसल जा रहा था। उसकी मुश्तबा हालत से बदगुमानी हुई और ख्याल हुआ कि जरूर हम लोग के मुतालिक वाली मिस्र के पास अहकाम जारी जा रहे हैं। तलाशी ली गई तो दर हकीकत एक ऐसा फरमान बरामद हुआ जिसमें हिदायत की गई थी कि हम लोगों की गर्दन मार दी जाए। इसलिए अब हम इस बदअहदी और फरेबकारी का इंतकाम लेने आए हैं। खिलाफत से किनारा कशी का मुतालबा। हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु को इस वाक़े से इत्तला दी गई तो आपने हैरत के साथ अपनी ला इल्मी जाहिर की और कसम खा कर कहा कि मुझे मुताल्लिक़न इस खत की इत्तला नहीं है। हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के हल्फिया इनकार पर लोगों ने कयास किया कि ये यकीनन मरवान की शरारत है। मिस्रियों ने कहा, बहरहाल कुछ भी हो, जो खलीफा इस कदर गाफिल हो कि उसकी ला इल्मी में ऐसे अहम उमूर पेश आ जाएं और उसे खबर न हो, वो किसी तरह खिलाफत के लिए मौजू नहीं हो सकता। और हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु से मसनद खिलाफत से किनाराकश हो जाने का मुतालबा किया। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तक मुझ में रमक जान बाकी है, मैं इस खलत को जो खुदा ने मुझे पहनाया है खुद अपने हाथों से नहीं उतारूंगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक सब्र करूंगा। मुहासरा। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इनकार पर मुफस्सिरीन ने काशियाना खिलाफत का निहायत सख्त मुहासरा कर लिया, जो 40 दिन तक मुसलसल कायम रहा। इस अरसे में अंदर पानी तक पहुंचाना जुर्म था। एक दफा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथ खाने पीने की कुछ चीजें लेकर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंचने की कोशिश की, मगर मुफस्सिरीन के क़ुलूब नूर ईमान से खाली हो चुके थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम मुहर्रम का भी पास और लिहाज ना किया और बेअदबी के साथ मुज़ाहमत करके वापस कर दिया। हमसाया घरों से कभी कभी रसद और पानी की इमदाद पहुंच जाती थी। मुफस्सिरीन की खीरा सरी से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेएहतरामी इतनी बढ़ गई थी कि हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साद वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे अकाबिर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक की किसी ने ना सुनी और उनकी तौहीन की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बुलाने पर उनके घर के अंदर जाना चाहा तो लोगों ने उनको रोक दिया। आपने मजबूर होकर अपना सियाह अमामा उतार कर कासिद को दे दिया और कहा, जो हालत है उसको देख लो और जाकर कह दो। बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना छोड़कर चले गए थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सफर हज का इरादा कर लिया। अकाबिर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन पुरआशूब हालात में गोशा नशीनी मुनासिब समझी। जिम्मेदार सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में उस वक्त 3 बुजुर्ग हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, जो ना तो बेताल्लुक रह सकते थे और ना उन हालात पर उनको काबू था। तीनों साहिबों ने कुछ कोशिशें भी की, मगर इस हंगामे में कोई किसी की नहीं सुनता था। इसलिए तीनों असहाब भी अमलन अलहदा रहे, मगर अपने अपने जिगरगोशों को खलीफा वक्त की हिफाजत के लिए भेज दिया। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में जो जानिसार मौजूद थे उनकी अफसरी पर मुतय्यन किया। बागियों को हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फरमाइश। काशाने खिलाफत का मुहासरा करने वाले बागियों को मुतादिद दफा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने समझाने की कोशिश की कि इनके सामने मौसर तकरीरें की। हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीर की, लेकिन इन लोगों पर किसी चीज का असर न हुआ। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने छत के ऊपर से मजमुए को मुखातिब करके फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो ये मस्जिद तंग थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन सी जमीन को खरीद कर वक्फ करेगा, कौन इस जमीन को खरीद कर वक्फ करेगा, इस सिले में उसको इससे बेहतर जगह जन्नत में मिलेगी।
तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील की। तो क्या इसी मस्जिद में तुम मुझे नमाज पढ़ने नहीं देते? तुमको खुदा की कसम देता हूँ, बताओ तुम क्या जानते हो कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो उसमें अरोमा के सिवा मीठे पानी का कुआं ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको कौन खरीद कर आम मुसलमानों पर वक्फ करता है और इससे बेहतर उसको जन्नत में मिलेगा। तो मैंने ही इसकी तामील की। तो क्या इसी के पानी पीने से मुझे महरूम कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि उसरत के लश्कर को मैंने साजो सामान से रास्ता किया था? सब ने जवाब दिया, खुदावंदा ये सब बातें सच हैं, मगर संग दिलों पर इसका असर भी ना हुआ। और फिर मजमूए को मुखातिब करके फरमाया, तुमको कसम देता हूँ, तुम में किसी को याद है कि एक दफा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चढ़े तो पहाड़ हिलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ को ठोकर मार कर फरमाया, ए हिरा ठहर जा, तेरी पीठ पर उस वक्त एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक शहीद है और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। लोगों ने कहा याद है। फिर फरमाया, खुदा का वास्ता देता हूँ, बताओ कि हुदैबिया में मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में सफीर बनाकर भेजा था, तो क्या खुद अपने एक दस्ते मुबारक को मेरा हाथ करार नहीं दिया और मेरी तरफ से खुद ही बैत नहीं की? सब ने कहा सच है। आखिर में बाकी ये देखकर हज का मौसम चंद रोज में खत्म हो जाता है और इसके खत्म होते ही लोग मदीने का रुख करेंगे और मौका निकल जाएगा। आपके कत्ल करने के मशवरे करने लगे, जिसको खुद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कानों से सुना और मजमूए की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, लोगों आखिर किस जुर्म पर तुम मेरे खून के प्यासे हो? इस्लाम की शरीयत में किसी के कत्ल की सिर्फ 3 ही सूरतें हैं, या तो उसने बदकारी की हो तो उसको संसार किया जाए, या उसने बिला इरादा किसी को कत्ल किया हो तो वो क़सास में मारा जाएगा, या वो मुर्तद हो गया हो तो वो कत्ल किया जाएगा। मैंने ना तो जाहिलियत में और ना इस्लाम में बदकारी की, ना किसी को कत्ल किया और ना इस्लाम के बाद मुर्तद हुआ। अब भी गवाही देता हूँ कि खुदा एक है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लेकिन बाकियों पर इनमें से कोई तकरीर कारगर ना हुई। जानिसारों के मशवरे और इजाजत तलबी। बाज जानिसारों ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। मुगीरा बिन शअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन 3 बातें हैं, इनमें से एक कबूल कीजिए। आपके तरफदारों जानिसारों की एक ताकतवर जमात यहाँ मौजूद है, उसको लेकर निकलिए और इन बागियों का मुकाबला करके उनको निकाल दीजिए। आप हक पर हैं, वो बातिल पर। लोग हक का साथ देंगे। अगर ये मंजूर नहीं तो फिर सदर दरवाजा छोड़कर दूसरी तरफ से दीवार तोड़कर इस मुहासरे से निकलिए और सवारियों पर बैठकर मक्का मुअज़्ज़मा चले जाइए। वो हरम है, वहाँ ये लोग ना लड़ सकेंगे। या फिर ये कि शाम चले जाए, वहाँ के लोग वफादार हैं और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं बाहर निकल कर इनसे जंग करूंगा, तो मैं वो पहला खलीफा बनना नहीं चाहता जो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खून रेजी करे। अगर मक्का मुअज़्ज़मा चला जाऊं तो भी इसकी उम्मीद नहीं कि ये लोग हरम इलाही की तौहीन ना करेंगे और जंग से बाज आ जाएंगे, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के मुताबिक वो शख्स नहीं बनना चाहता जो मक्का जाकर उसकी बेहुरमती का बाइस होगा, और शाम भी नहीं जा सकता कि अपनी हिजरत के घर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार को नहीं छोड़ सकता। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर बहुत बड़ा और वसी था। दरवाजा और घर में सहाबा और आम मुसलमानों की खासी जमीयत मौजूद थी, जिसकी तादाद 700 थी और जिसके सरदार हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहादुर साहबजादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि अमीरुल मोमिनीन इस वक्त घर के अंदर हमारी खासी तादाद है, इजाजत हो तो मैं इन बागियों से लड़ूं। फरमाया, अगर एक शख्स का भी इरादा हो तो मैं उसको खुदा का वास्ता देता हूँ कि वो मेरे लिए अपना खून ना बहाए। घर में इस वक्त 20 गुलाम थे, उनको भी बुलाकर आजाद कर दिया। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
آ کر عرض کیا امیر المومنین انصار دروازے پر کھڑے اجازت کے منتظر ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے کارنامے دکھائیں۔ فرمایا اگر لڑائی مقصود ہے تو اجازت نہ دوں گا، اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو میری مدافعت میں تلوار نہ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تمہیں پسند آئے گا کہ تم تمام دنیا کو اور ساتھ ہی مجھ کو بھی قتل کر دو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا کہ اگر تم نے ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا سب قتل ہو گئے۔ اور یہ سورہ مائدہ رکوع 5 کی آیت 6 کی طرف اشارہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر لوٹ آئے۔ شہادت کی تیاری۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ ان کو اس ثانیہ سے خبردار کیا تھا اور صبر و استقامت کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصیت پر پوری طرح قائم اور ہر لمحہ ہونے والے واقعے کے منتظر تھے۔ جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ روزے سے تھے۔ جمعے کا دن تھا۔ خواب میں دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی کرو، تمہارے افطار کے ہم منتظر ہیں۔ بیدار ہوئے تو حاضرین سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں۔ پارٹ 18 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے کہ کتاب خلفائے راشدین کا بقیہ حصہ پارٹ 19 پر سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔